کے بغیر گھر کا آنگن سونا سونا لگتا ہے۔ اولاد کی خواہش ہر شادی شدہ جوڑے کا اولین خواب ہوتا ہے۔ قدرت جسے چاہتی ہے نوازتی ہے اور جسے چاہتی ہے محروم رکھتی ہے۔ 22 سالہ فوزیہ بھی ایک ایسی لڑکی تھی جو شادی کے 4 سال بعد بھی ماں نہیں بن سکی تھی۔ میں ہوں پارس مسرور اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کوٹ لکھپت لاہور کی فوزیہ کی کہانی، کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا۔ ایک دن شبیر نے دیکھا کہ فوزیہ کا شوہر کمپیوٹر کے سامنے تھا اور آن لائن خرید و فروخت کی ایک سائٹ دیکھ رہا تھا۔ اس کے سامنے ایک بچے کے جھولے کی تصویر آئی تو وہ اس کی قیمت دیکھنے لگا، ساتھ ہی اس نے اپنی بیوی کو بھی آواز دی۔ فوزیہ ادھر آؤ جلدی سے۔ ہاں بولو۔ یہ دیکھو کتنے پیارے بچوں کے جھولے نا، اور پیسے دیکھو بالکل کوڑیوں کے بون مل رہے ہیں۔ میں خرید رہا ہوں۔ ہاں مجھے کیا پتا، مجھے کیا گارنٹی ہے کہ آپ کے کسی کام آئیں گے؟ تم تو نا ہمیشہ مایوسی والی باتیں کرنا۔ مجھے نہیں پتا بھائی، میں تو پرچیز کر رہا ہوں۔ جو آپ کے دل میں آئے کریں۔ وہ اماں کب سے کھانا مانگ رہی، میں نے کھانا دے دوں؟ ہاں دے دو۔ فوزیہ کچن میں واپس چلی گئی۔ اس کا شوہر فون پر کسی سے بات کرتا دکھائی دیا۔ فوزیہ جب ساس کے سامنے کھانا لے کر پہنچی تو اس کی ساس ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ فوزیہ کے آنے پر اس نے ٹی وی کی آواز بند کر دی۔ کیا ہوا بیٹا، آج کھانے میں بڑی دیر کر دی؟ اماں وہ گیس کم آ رہی تھی۔ وہ حفیظ کہاں ہے؟ کھانا کھا لیا اس نے؟ حفیظ، ارے حفیظ، جی اماں آ گیا۔ ارے کھانا کھا لے، ہر وقت کمپیوٹر پہ لگا رہتا ہے۔ ارے بھائی آج شام کو چلنا ہے۔ کہاں؟ بھائی شازیہ کیا بیٹا ہوا ہے، مٹھائی لے کے جانی پڑے گی۔ کس کے ہاں؟ ارے وہ شازیہ نہیں ہے، میری بہن ہے نا، اس کی بہو، اس کے یہاں بیٹا ہوا ہے۔ اللہ نے پورے 1 سال کے اندر بیٹا دے دیا، اور بھائی تمہاری شادی کو تو 3 سال ہو گئے، ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں آئی۔ اماں 3 نہیں 4 سال ہونے والے۔ ارے مجھے تو کچھ یاد ہی نہیں رہتا۔ اللہ ہمارے گھر میں بھی خوشیاں دکھائے۔ میں تو ہر وقت اللہ سے بس یہی دعا کرتی رہتی ہوں، یہ مرچی کو ڈال دی سالن میں۔ ویسے اماں لگتا ہے اس سال آپ کی دعا پوری ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں جھولا بھی دیکھ رہا تھا میں۔ ہائے ہائے، اتنی بڑی خوشخبری اور تم دونوں نے مجھ سے چھپا لی ہے۔ اماں بس دعا کریں کہ سب خیریت سے ہو جائے، اور ابھی رپورٹ آنے میں تو 1 ہفتہ ہے۔ ارے رپورٹوں کو چھوڑ، ڈاکٹروں کے پیچھے مت بھاگو۔ میں تو عورت کی شکل دیکھ کے بتا دوں کیا ہوگا اور کب ہوگا۔ اور نہیں تو کیا، تم نے سمجھ کیا رکھا ہے میری اماں کو۔ ویسے اماں ایک بات اور بتانا بھول گیا آپ کو، آفس کی طرف سے میرا لاہور ٹرانسفر ہو گیا، 2 سال کے لیے لاہور جا رہا ہوں۔ کوئی اچھا سا گھر دیکھ کے آپ کو بھی بلا دوں۔ اور کیا، اماں کے بغیر دل تھوڑی لگے گا وہاں۔ کیسی چاند سی بہو ہے میری، انشاءاللہ بیٹا بھی دیکھنا چاند سا ہی ہوگا۔ اب بھائی کھانا وانا اٹھا لے، مجھے تو لگ رہا ہے رات بھر خوشی کے مارے مجھے نیند نہیں آئے گی۔ کتنی بڑی خوشخبری سنا دی تو نے مجھے، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر۔ فوزیہ اور حفیظ 4 سال تک اولاد نہ ہونے سے انتہائی پریشان تھے۔ خاص طور پر خاندانی دباؤ اور طنز و تانوں نے دونوں کا جینا دوبھر کر دیا تھا۔ پھر وہ دونوں لاہور منتقل ہو گئے تو فوزیہ کی ساس کو ہر لمحے یہ تشویش رہتی تھی کہ کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ شبیر نے دیکھا کہ فوزیہ اور حفیظ کمرے میں تھے۔ حفیظ کمپیوٹر پر مصروف تھا اور فوزیہ موبائل پر اپنا وقت گزار رہی تھی کہ اس کی ساس کا فون آ گیا۔ فوزیہ اپنی ساس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شوہر نے اشارے سے فون کے بارے میں پوچھا تو فوزیہ نے بھی اشاروں میں بتایا کہ اس کی ماں کا فون تھا۔ میں بات کرتی ہوں۔ السلام علیکم امی۔ ہائے وعلیکم السلام، کیسا ہے بیٹا؟ میں نے بہو کو فون کیا تھا، اسے دے۔ جی امی وہ ذرا باہر گئی ہے، اپنا موبائل گھر میں بھول گئی تھی۔
अच्छा, फौजिया से कह देना कि बच्चे के कपड़े नहीं खरीदे, मैंने सारी खरीदारी कर ली है। लेकिन अच्छा ठीक है अम्मी, कह दूंगा मैं। अच्छा बाद में बात करता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। अरे क्या हो गया, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? तू अनोखा है जो बाप बन रहा है दुनिया में पहली दफा। अरे अल्लाह नेमत दे रहा है तो खुशी खुशी उस नेमत को गोद ले। जी अम्मी खुश हूँ, बस थोड़ा मसरूफ था, काम कर रहा था ऑफिस का। मैं बाप से बाद में बात करता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। चल अल्लाह। फौजिया की सास को पता नहीं कैसे ये यकीन हो गया था कि वो जल्द दादी बनने वाली है। बेटे और बहू ने सास को मुतमईन रखने के लिए जो गोलमोल बात की थी वो खुद उन दोनों के लिए परेशानी का बायस बनती जा रही थी। उधर फौजिया की सास बच्चे की पैदाइश पर खानदान भर की दावत करने का प्लान बनाए बैठी थी। शब्बीर ने देखा कि महल्ले पड़ोस और कुछ रिश्तेदार औरतें फौजिया की सास को मुबारकबाद देने आई हुई थी। अरे मैंने तो जैसे खुशी की खबर सुनी सब काम छोड़ छाड़ के भागी दौड़ी चली आई। मुबारक हो बहुत बहुत। वैसे कब बन रही हो दादी? भाई ये अगस्त का महीना आएगा ना, बस मैं दादी बन जाऊंगी। अल्लाह से तुम दोनों मिलके दुआ करो, अल्लाह चांद सा बेटा दे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तुम्हारी बहू बेटा बहुत परेशान रहते थे, मैं कहती थी ना अल्लाह पे भरोसा रखो। जुलेखा झूठ तो कम बोलो, तुमने ही तरह तरह के इनके दिमाग में खराफात पाल रखे थे। क्या हफीज की माँ बांझ बहू ले आई। अरे छोड़ो ना ये बातें, मैंने भी ना बहुत बदगुमानियां पाल ली थी अपनी बहू के लिए अपने दिल में। तौबा तौबा, अल्लाह मुझे माफ कर दे अल्लाह। अरे आप ना जल्दी से आ, हमारी तस्वीर और मूवी तो बना बेटा। अल्लाह दिखा कैसी बनाई, दिखा तो सही। लो हमसे तो अच्छी इतनी सी बच्चियां रही, देखियो जरा कितनी अच्छी बनाई है। अरे माशाल्लाह, जीती रहे मेरी बच्ची। ये ले कैसी अच्छी बच्ची है। और क्या चाय पियोगी? नहीं बस सही है, चलेंगे बस। अरे अल्लाह वो दिन तो आए परवरदिगार, आमीन। हफीज और उसकी बीवी फौजिया हर तरह का इलाज कराने के बाद अब तकरीबन मायूस हो चुके थे कि ऐसे आलम में उनकी मां की जानिब से जो वीडियो भेजी गई उसने उन दोनों को मजीद परेशान कर दिया। ये देखिए अम्मा की वीडियो। अब इस उम्र में अम्मा को क्या बोलूं मैं क्या जवाब दूं उनको, बोलो। अच्छा फौजिया मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं उन्हें कह देती हूँ कि सब जाया हो गया। जी नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। अब इस उम्र में अम्मा को क्या बोलूं मैं क्या जवाब दूं उनको, बोलो। अच्छा फौजिया मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं उन्हें कह देती हूँ कि सब जाया हो गया। ना ना ना, ऐसी गलती भी मत करना। हार्ट पेशेंट है वो, हार्ट अटैक आ सकता है उन्हें। तो फिर मैं क्या करूं? फौजी तुम्हें मेरा दोस्त शाहिद याद है ना, उसने एक बाबा का पता बताया था कि उनकी मज़ार पर जाकर मन्नत मानो, मन्नत पूरी होती है। क्यों ना हम मज़ार पर जाके मन्नत माने? वैसे मैं भी यही सोच रही थी। ठीक है, 1-2 दिन में चलते हैं वहाँ। मैं शाहिद को फोन करके जब तक और कंफर्म कर लेता हूँ। कुछ दिनों बाद शब्बीर ने दोनों को एक मजार पर चादर चढ़ाते देखा। वो दोनों मजार से वापसी पर खासे मुतमईन दिखाई दे रहे थे। हफीज और उसकी बीवी को मौजज़ात पर यकीन था। जिस दिन उन्होंने मजार पर चादर चढ़ाई थी खासे मुतमईन थे। फिर एक दिन शब्बीर ने नाकाबिले यकीन मंजर देखा।
फौजिया की गोद नौमौलूद बच्चा था और वो उससे प्यार कर रही थी। हेलो हेलो फौजिया, मैं प्यारा बच्चा है ना, मैं इसकी तस्वीर खींच के अम्मा को अभी व्हाट्सएप करता हूँ। अरे नहीं, वो दरबार वाले बुजुर्ग ने कहा था कि बच्चे की पैदाइश के 1 महीने तक किसी को उसकी शक्ल नहीं दिखानी है। अच्छा फौजिया, पता नहीं क्यों मुझे डर सा लग रहा है। मुझे खुद एक अनजाना खौफ है। हुई ये देखो पापा। शब्बीर दोनों की गुफ्तगू सुनकर हैरान था। ये अजीब मंतक थी कि बच्चे की पैदाइश का ऐलान करते हुए दोनों मियां बीवी झिझक रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं था कि बे औलाद जोड़ा किसी खैराती इदारे से बच्चा मांग लाया हो। शब्बीर इस खोज में सरगर्दा हो गया। एक दिन शब्बीर ने देखा कि फौजिया और उसका शौहर एक खैराती इदारे के सामने से गुजर रहे थे। शब्बीर ने खामोशी से उनका पीछा करना शुरू किया तो वो एक अस्पताल के सामने से गुजरते दिखाई दिए। हफीज ने अस्पताल के सामने अपना रक्षा रोक दिया। बच्चा हफीज की गोद में था और फौजिया अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में जाकर चुपचाप बैठ गई। शायद वो बच्चे की वैक्सीनेशन की पर्ची बनवाने आई थी, लेकिन उसकी हरकत और सकनात से लग रहा था जैसे वो किसी बात की तस्दीक करने आई हो। जी बीबी, आप आई वैक्सीनेशन के लिए? जी इसीलिए आई है। बच्चा किधर है? वो बाहर अपने पापा के पास है। अरे बीबी, क्या करती हैं आप? अपने बच्चे की हिफाजत किया करें। कुछ दिन पहले यहाँ पे एक बच्चा गुम हुआ है। क्या बच्चा गुम हो गया यहाँ पे? हाँ ना, उसकी माँ का तो रो रो के बुरा हाल हो गया। तो वो उसके माँ बाप ने कंप्लेन नहीं करवाई पुलिस में? पता नहीं, ये तो उसके घर वालों को पता हो कि अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। अच्छा, वो मैं अपना बच्चा लेकर आती हूँ। चलें, ठीक है। फौजिया पर्ची बनवाने के बजाय अस्पताल से बाहर निकल आई और रक्शे में बैठ गई। फौजिया के खौफ और डर की वजह शब्बीर को उस वक्त समझ में आई जब जनरल अस्पताल से एक नौमौलूद बच्चे के अगवा की सीसीटीवी फुटेज शब्बीर ने देखी। ये फौजिया थी जिसने रिश्तेदारों के तानों से तंग आकर अस्पताल से एक बच्चा अगवा कर लिया था, मगर 5वें रोज धर ली गई। ये है वो फुटेज। पुलिस ने बच्चा मां के हवाले करने के साथ ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुल्जिमान को भी पेश कर दिया था। ये है वो मनाजिर। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये हमने एक गुड न्यूज़ शेयर करने के लिए कॉल की है और वो ये आपके सामने है। एक न्यू बॉर्न बेबी जो कोट लखपत में जनरल हॉस्पिटल से गायब हुआ और इसको अगवा किया गया। प्यार करने के बहाने माँ से बच्चा लिया गया और उसके बाद फिर इसको लेके गायब हो गए। 4000 प्लस CDRs का एनालिसिस किया गया और इसके अलावा जो हमारे कैमरा एनालिसिस हैं, कैमरा ट्रैकिंग है, वो भी तकरीबन थाउजेंड्स में है। 4-5 दिन तक इन्होंने अनथक मेहनत करके इस बच्चे को ना सिर्फ ट्रेस करके रिकवर किया बल्कि मुल्ज़मान 3 जो हैं वो गिरफ्तार किए, जिनका नाम अब्दुल हफीज़ है और फौजिया और उनका एक और फैसिलिटेटर है अब्दुल सुभान। ये तीनों मुल्ज़मान गिरफ्तार किए। पहले भी इन्होंने जनरली चूँकि इशूलेस थे, इनकी औलाद नहीं थी, तो पहले भी कोशिश इन्होंने की बच्चे को हॉस्पिटल से चोरी करने की इससे पहले, लेकिन यहाँ पे इनको मौका मिल गया और उन्होंने उसको एग्जीक्यूट कर लिया। शब्बीर का कहना है कि बिलाशुबा औलाद की ख्वाहिश इंतहाई शदीद होती है, लेकिन ऐसा भी क्या कि एक माँ की गोद उजाड़ कर अपना आंगन आबाद किया जाए। बच्चा अगवाया तो असी मार लिया लगे, दूसरे शिफ्ट करने लगे थे तो लेडी साढ़े कोल बैठी रही, घंटा बैठी रही कम से कम। मेरी सिस्टर थी तो मैं थी, असी दो मरीज लैन चले गए तो पीछे बच्चा लैके निकल गई। साढ़े को लैके तो रो रहा थी कि तू दूध बना दे ते बच्चा मैनू बना दे, अज बच्चा बना दे। इतनी देर गार्ड ने आवाज मार ली गया अपना मरीज उधर लै गया अपना शिफ्ट करके। अच्छा मरीज लैन चले गए तो पीछे बच्चा लै गया। साढ़े नाल बड़ा ताउन किया उन्हें तो साढ़े शुक्रिया करने बड़ा खुश है साढ़े साथ बच्चे।
फौजिया और हफीज को अगर बच्चे की ख्वाहिश इतनी ही शदीद थी तो किसी भी इदारे से किसी यतीम लावारिस बच्चे के सर पर हाथ रखकर अपनी दुनिया और आखिरत संवारी जा सकती थी। तो ये है कि हमारे 3 साल हो गए शादी को ना, तो बेबी नहीं हो पा रहा था। ठीक है, अडॉप्ट सेंटर गया तो उन्होंने मतलब कि काफी रिक्वायरमेंट मांगी थी, तो हम किराएदार थे, तो वो कहते अपना घर हो तो उनको देते हैं। इसलिए फिर किसी ने हमें बताया कि हॉस्पिटल में भी लोग पैदा होते हैं तो बेबी दे देते हैं, कोई ऐसे लोग भी होते हैं। हम हॉस्पिटल में आते थे, 1-2 दफा आए, चक्कर आया, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आया। अचानक से मेरी मिसेज मतलब कि किसी के साथ चेयर में बैठी थी, अचानक से उन्हें बेबी दे दिया। हमने दिल में सोचा कि अल्लाह ने यही मंजूर था, तो हमने उठाया हुआ ऐसे घूम रहे हैं, तो फिर उनके पापा वगैरह नजर नहीं, वो अपने मसले में चले गए, मेरी मिसेज बेटे भाई हाल। फौजिया और हफीज ने जो कुछ किया अब वो उसकी सजा जरूर भुगतेंगे। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। जुबैदा और मजीद ने पसंद की शादी की थी और हर अच्छे बुरे हालात में एक दूसरे का साथ देने का अहद किया था। शादी के 1 साल बाद जब उनके यहाँ एक बच्ची की पैदाइश हुई तो उनका रिश्ता और मजबूत हो गया और मजीद ने अपनी बेटी के मुस्तकबिल के लिए पैसे जोड़ना शुरू कर दिए। अभी बच्ची पांव चलने के काबिल भी नहीं हुई थी कि हालात ने बाप को बेटी से दूर कर दिया। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। जुबैदा अपने शौहर के जूते साफ कर रही थी और उसका शौहर जैसे कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। सुने, आप अपने ऑफिस वाले को मना कर देना कि आपकी बच्ची अभी बहुत छोटी है, आपका तबादला ना करें दूसरे शहर। अरे भाई, सरकारी मुलाजिम हुआ और इस तरह के तबादले होते रहते हैं। और शहर कितना दूर है, 5-6 घंटे का रास्ता है, चक्कर लगा लिया करूंगा। नहीं है, सही कह रहे, 5-6 घंटे का सफर है, लेकिन मुझे तो इतनी परेशानी हो रही है, आप नहीं होंगे तो मैं कैसे अकेले मैनेज करूंगी। कोई सौदा सर्फ लाना हो, बाहर से कुछ सामान लाना, तभी इतनी सी बच्ची को घर में अकेला छोड़ के जाऊंगी। मैं जानता हूँ तुम कर लोगी, इतना हौसला है तुम में। और फिर 1-2 साल की बात है, मैं ना समाजत करके ट्रांसफर करवा लूंगा दोबारा अपना। अब शहजादी नजर नहीं आ रही, कहाँ है? बाहर फैन में खेल रही है। अच्छा चलो, मुझे देर हो रही है, मैं निकलता हूँ, गाड़ी का टाइम हो रहा है। चलो, मैं आपको भेज सकती हूँ। एक प्यारी सी बच्ची पांव चलते कमरे में आई तो बाप ने उसे गोद में लेकर प्यार करना शुरू कर दिया। मजीद ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसका तबादला मुख्तलिफ शहरों में होता रहा और वो ईद बकरीद पर या फिर खुसूसी छुट्टियां लेकर घर आता रहा। इसी तरह शादी को 17-18 साल गुजर गए। बच्ची बड़ी हो गई। शौहर के जाने के 1-8 साल बाद ही जुबैदा की जिंदगी में एक और शख्स शामिल हो गया। आइए जरा वक्त की उल्टी गिनती करके देखते हैं। सुने भाई, शब्बीर ने देखा कि जुबैदा अब दरवाजे पर खड़ी थी। दूर एक सब्जी वाला आवाज लगा रहा था और जुबैदा उसे बुलाने की कोशिश कर रही थी कि इसी दौरान उसके पड़ोसी इमाम बख्श का उधर से गुजर हुआ। ये जरा प्लीज सब्जी वाले को तो बुला दें। अरे वो तो बहुत दूर चला गया है, आपको क्या चाहिए मुझे बताएं, मैं ला देता हूँ। अरे नहीं, आपको जहमत होगी। अरे लाइए, मैं ला देता। आलू प्याज मंगाने थे। इमाम बख्श सब्जी लेने चला गया। जुबैदा किचन में जाकर काम करने लगी। थोड़ी देर में दरवाजे पर बेल हुई तो जुबैदा दुपट्टे से माथे का पसीना पोंछते हुए दरवाजे पर पहुंच गई। अरे इतनी जल्दी? बहुत बहुत शुक्रिया। 1 मिनट, ये आपकी बच्ची के लिए मैंने टॉफियां भी ले ली। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। असल में मेरे शौहर का तबादला हो गया है ना दूसरे शहर में, तभी परेशान रहती हूँ, वरना जब तक वो थे तो तब तक सारे काम वही करते थे। अरे तो क्या हुआ, इसमें फिक्र करने की कोई बात नहीं, आखिर मैं आपका पड़ोसी हूँ। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। मोबाइल दे मुझे अपना। मोबाइल? हाँ हाँ दीजिए, ये लीजिए, ये मेरा नंबर है। आधी रात को भी आप मुझे फोन करेंगे ना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।
इमाम बख्श चला गया तो अचानक जुबैदा के कान में आधी रात वाला जुमला गूंजने लगा और उसके साथ ही जुबैदा ने गौर किया तो इमाम बख्श की आंखें कुछ कह रही थी। जुबैदा और उसके पड़ोसी इमाम बख्श के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता बेतकल्लुफी बढ़ती जा रही थी। एक रात शब्बीर ने देखा कि जुबैदा की नजर घड़ी पर पड़ी तो रात का 1:30 बज रहा था। वो बिस्तर से उठी और पानी पीने के लिए नल खोला तो पानी गायब था। फिर उसने तमाम बर्तन देखे जो खाली थे। जुबैदा परेशान हो गई कि इतनी रात को पानी कहाँ से लाए। वो कुछ सोचने लगी, उसके सामने वही मंजर उभरा जब इमाम बख्श ने आधी रात को भी काम करने की पेशकश की थी। फिर शब्बीर ने देखा कि जुबैदा ने इमाम बख्श को मैसेज किया तो उसने पानी लाने की हामी भर ली और साथ ही ये भी लिख दिया कि दरवाजा खोल कर रखा जाए। जुबैदा ने आहिस्तगी से दरवाजा खोल दिया। इमाम बख्श ने कुछ इस तरह कहा कि जुबैदा उसे अंदर आने से नहीं रोक सकी। फिर उसने एहतियातन दरवाजा बंद कर दिया और इमाम बख्श को नल के पास ले गई। ये आ गया आपका पानी। बहुत बहुत शुक्रिया। पानी क्यों नहीं आ रहा? मुझे तो नहीं पता क्यों नहीं आ रहा। आप कहे तो मैं देख लूं? जी क्यों नहीं, चेक कर लें। हाँ, वो मैंने देखा है, एयरलाइट हो गई है। सुबह प्लम्बर को लाके सही करा देंगे आपके पानी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे शुक्रिया की क्या बात है, आखिर में आपका पड़ोसी हूँ। ये तो बात ठीक है, लेकिन आपको पता है ना कि किसी ने अगर आपको हमारे घर में देखा तो लोग अफसाने बना ले। अरे किसी को कुछ मालूम नहीं होगा, आप बेफिक्र हो जाए। आप आइए, कुंडी लगाए। जी जरूर। वक्त गुजरता गया। जुबैदा और मजीद की बेटी बड़ी हो गई। मजीद के कानों में भिनक पड़ चुकी थी कि इमाम बख्श का उसके घर आना जाना था, लेकिन उसने बीवी पर इल्जाम लगाने के बजाय उसे प्यार से समझाना ज्यादा मुनासिब समझा। शब्बीर ने देखा कि मजीद कांधे पर बैग लटकाए घर के दरवाजे पर उतर गया। अंदर इमाम बख्श मौजूद था जो घंटी बजने से घबरा गया। आ रही हूँ। मजीद की बीवी परेशान हो गई। इस दौरान उसने इमाम बख्श को पीछे के दरवाजे से बाहर निकाल दिया और चेहरे पर मुस्कुराहट तारी करते हुए जल्दी जल्दी दरवाजा खोलने लगी। आ रही हूँ। अरे बाबा, आ रही हूँ। अरे आप लाए, मुझे बैग दे दें। चले ना। बैठे। शहजादी बेटी कहाँ? शहजादी कॉलेज गई, बस आने वाली होगी। ये आज आपको छुट्टी कैसे मिल गई? अरे छुट्टी कहाँ मिली है, 4 दिन के लिए आया हूँ तुम्हारी बीमारी का बहाना करके। आज बिरयानी बना लेना, बहुत दिन हो गए तुम्हारे हाथ का खाना खाए हुए। बिल्कुल, आप बैठे, मैं पानी लेकर आती हूँ। जुबैदा किचन में चली गई कि इतनी देर में दरवाजे की घंटी फिर बजी। मजीद ने दरवाजा खोला तो उसकी बेटी कॉलेज से आई हुई थी। अस्सलाम वालेकुम अब्बू, आप कब आए? अरे आ गया मेरा बेटा। बस बेटा अभी थोड़ी देर पहले ही आया। और तुम सुनाओ, पढ़ाई कैसे चल रही है? बाबा, पढ़ाई तो मेरी बहुत अच्छी चल रही है। अरे आ गई मेरी शहजादी बेटी। बताओ जरा अपने बाबा को कि मैं और तुम इन्हें कितना मिस कर रहे थे। मम्मा, आपका तो पता नहीं, पर मैंने बाबा को बहुत मिस किया। अरे बातें करती रहोगी बाबा के साथ। आओ मेरी बात है मेरा बेटा। जुबैदा बेटी को कमरे से बाहर ले गई और राजदाराना अंदाज में उसे कुछ समझाने लगी। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे बाबा बहुत शकी मिजाज हैं। उनको नहीं बताना कि इमाम बख्श अंकल घर पर आते हैं। तुम्हें पता तो है कि सौदा सच ला देते हैं, हमारी मदद हो जाती है, लेकिन तुम्हारे बाबा को पता चला ना तो फजूल में झगड़ा करेंगे घर में। ठीक है मेरा बच्चा, जाओ ये बैग दो, अब बाबा से बातें करो मेरा बच्चा, मैं काम कर दूँ। ठीक है। उस रोज मजीद ने अपनी बीवी को बताया कि उसे अलाउंस की मद में 7 लाख रुपए मिले थे, जिस पर उसकी बीवी बहुत खुश हुई थी। जुबैदा, तुमसे एक बात बोलूं? पूछो। हमारी बेटी जवान हो गई है, उसका ख्याल रखती हो ना? क्या मतलब ख्याल रखो? मैं उसे छोड़ के कौन सा घूमने फिरने चली जाती हूँ? अरे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा था कि तुम कहीं चली जाती हो। असल में मेरे पीछे कोई आता तो नहीं है ना घर में? कौन आएगा इस घर में? अरे
वो तो बेचारा इमाम बख्श है, उससे कभी कभार मैं सौदा सल्फ मंगवा लेती हूँ। उसी की बात कर रहे हो ना तुम? अरे वो जाफरी साहब है ना, वो दबे अल्फाजों में मुझे कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें डांट के बोल दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। कौन? वो जाफरी, बुढ़ा खप्ती? पूछूंगी मैं उससे। क्यों बोल रहा है वो इस तरह की बकवास? अपनी बीवी की तरह समझा उसने मुझे। उसकी अपनी बीवी का तो 1000 लोगों से ताल्लुकात है। पूछूंगी मैं उससे। अरे नहीं जुबैदा, मैं जानता हूँ तुम्हें, तुम तो बहुत प्यारी और वफादार बीवी हो। अच्छा छोड़ो इस किस्से को, मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ। सुनाओ। मुझे 7 लाख रुपए मिले और साथ में 2 बोनस भी। अच्छा? ये सारा पैसा मैंने अपनी बेटी के लिए रख दिया, काम आएगा उसके। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह पाक हमारी बेटी के नसीब से और भी अता करे। जुबैदा को यकीन हो गया था कि उसके शौहर को इमाम बख्श से ताल्लुकात का पता चल चुका है। उसने अपने आशिक इमाम बख्श से राब्ता किया और फिर उन दोनों ने मजीद को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। रात का वक्त था, मजीद टीवी देख रहा था। उसकी नजरें उठी तो उसकी बीवी चाय की प्याली लिए उसके पास खड़ी थी। रात के 11 बज रहे हैं और आप अभी तक टीवी देख रहे हैं? बंद करें इसको, चाय पिए और ये लाइटें ना सोने से पहले बंद कर देना, ठीक है? पता है ना बिजली का बिल कितना बढ़ गया? ख्याल रखिएगा, लाइटें बंद कर लीजिएगा। उस रात मंसूबे के मुताबिक जुबैदा ने चाय में बेहोशी की दवा मिलाकर अपने शौहर को अपने आशना की मदद से कत्ल करके लाश जानवरों के बाड़े में गड्ढा खोदकर दफन कर दी थी और फिर छुपाने के लिए कई लीटर तेजाब डालकर गड्ढा बंद कर दिया था। यह खामोश कत्ल 2019 में हुआ था। मकतूल का भाई 2-2.5 बरस तक अपने भाई को तलाश करता रहा और फिर उसने भाभी के खिलाफ FIR दर्ज करा दी थी। पुलिस ने तफ्तीश की तो जुबैदा और उसका आशिक इमाम बख्श पकड़ा गया, जिन्होंने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। यह है मजीद की लाश जिसकी हड्डियां तक गल चुकी थीं और यह है मुबैना कातिल इमाम बख्श। अरशाद इकबाल जुबैदा महीने में सजे वे खड्डा खड्डे खड्डे पूरे ने वो तो मिट्टी दिवाई ने ते मरण वाला ना अब्दुल मजीद है उन्हीं को दसिया ते को असा मरा दे या तेरे बाला को मार दे मैं को धमकाई रखे ने माही खातर सर जी मैं कहीं को कहने नहीं चाहिए इतलाफ। कितने अर्से पहले की बात है? वे 3 साल मेरे अंदाजा मुताबिक 3 साल थी मैंने। पुलिस ने इस केस के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। सदर शुजाबाद के इलाके में एक रेंजर्स एहलकार अब्दुल मजीद के अगवा की खबर मिलती है। उसका पता नहीं चलता, गायब हो जाता है। उसका भाई अहमद बख्श पुलिस के पास इतला देता है, कुछ शकूक का इजहार करते हैं और इस वाक़या को तकरीबन 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं, कोई अता पता नहीं चल रहा होता। इस दौरान एक मुल्ज़म जिसके ऊपर शक किया जा रहा था इमाम बख्श, और पुलिस अपनी टेक्निकल वे से और बाकी तरीक़ों से ये इंकशाफ हमारे सामने आता है कि इसी इमाम बख्श ने अब्दुल मजीद मगवी रेंजर्स एहलकार की बीवी जुबैदा बीबी के साथ मिलके इस एहलकार को कत्ल कर दिया था। और ये बर्बरियत की आप इंतहा देखें कि कत्ल करने के बाद अपने ही घर के उसके ही घर के सेन में लाश को दबा दिया गया। मुख्तलिफ ज़राए से हमने मालूमात हासिल की तो जिससे हमें बाद में मालूमात ये मिली कि जो अब्दुल मजीद रेंजर में जो कांस्टेबल था वो एक जब LPR पे आया था तो उसके पास 7-8 लाख रुपया था और जो उसकी बीवी थी जुबैदा बीबी वो पैसे उसके हड़प करना चाहती थी। तो उसने अपने आशना ख्वाजा इमाम बख्श और अपने भाइयों के साथ मिलकर ये प्रोग्राम बनाया। तो एक रात उन्होंने उसको जो गर्दन पे छुरी फेर कर उसको ज़िबा कर दिया, उसको जो है हलाक कर दिया। तो इन्होंने फिर जुबैदा बीबी ने अपने ही घर में और जहाँ पे ये जानवर वगैरह बांधे तो भाने के अंदर गड्ढा खोद के उसकी लाश को दफना दिया। शब्बीर का कहना है कि खून नाहक कभी नहीं छुपाया जा सकता। खून अपनी गवाही खुद देता है और अगर मुल्जिम पकड़े न जा सके तो पहचाने जरूर जाते हैं। शब्बीर ने इस अफसोसनाक वाक़े की मजम्मत की है और कातिलों को इबरतनाक सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा।
मुल्क भर की तरह कराची में भी मवेशी मंडी में जानवरों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। कराची की मंडी को एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी कहा जाता है, जो हर साल सुपर हाईवे पर लगाई जाती है। शब्बीर ने मंडी का दौरा किया तो पता चला कि कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और मवेशी के व्यापारियों को गिला है कि मंडी में उन्हें किसी किस्म की सहूलत नहीं दी जा रही। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। हर साल की तरह इस साल भी सुपर हाईवे मवेशी मंडी में कुर्बानी के जानवर लाए गए हैं। इन जानवरों को पूरे साल इसी नीयत से पाला जाता है कि ईद कुर्बान पर उनको फरोख्त करके अच्छी कीमत वसूल की जाए। कोई जमाना था कि कुर्बानी के जानवर की खरीदारी में गाहक ज्यादा भाव ताव नहीं करते थे, लेकिन होशरुबा महंगाई ने त्योहारों के रंग भी फीके कर दिए हैं और इस साल मवेशी की खरीदारी भी इतनी ज्यादा होती नहीं दिखाई दे रही। शब्बीर ने सुपर हाईवे पर लगाई गई मवेशी मंडी का रुख किया तो यहाँ बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब से लाए गए तवाना और खूबसूरत जानवर दिखाई दिए। इन जानवरों को खूबसूरत जेवरात से आरास्ता किया गया था ताकि ये जानवर गाहक की तवज्जो हासिल कर सकें। मंडी में दोनों तरह के लोग मौजूद हैं। एक तो वो जो खरीदारी की नीयत से अपने बाल बच्चों और दोस्तों यारों के साथ आए हुए हैं, और दूसरे वो लोग जो महज विंडो शॉपिंग करके अपना दिल बहला रहे हैं। इन खूबसूरत जानवरों को देखते ही अंदाजा हो जाता है कि इनके मालिकान ने इनकी परवरिश में कितनी मेहनत की होगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या इन जानवरों की कीमतें तवक्को के मुताबिक मिल सकेंगी? कमर तोड़ महंगाई में तो ऐसा होना मुमकिन नजर नहीं आता और खदशा है कि व्यापारियों को खासा नुकसान उठाना पड़ेगा। शब्बीर ने व्यापारियों से बात की तो उनकी एक ही शिकायत थी कि जानवरों को मंडी लाने पर उनसे लाखों रुपए का टैक्स वसूल किया जाता है, लेकिन मंडी में सहूलतें ना होने के बराबर है। इंसान तो इंसान, इन बेज़बान जानवरों को भी इतना पानी मुहैया नहीं किया गया है कि ये सैर होकर पानी पी सके। शब्बीर ने मंडी में खासा वक्त गुजारा और व्यापारियों की दी गई सहूलतों पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। व्यापारियों से बात की तो उनके चेहरे भी उतरे हुए थे। मेरा नाम मोहम्मद नवाज, भावलपुर से आया हूँ। ये जानवर 26 लेके इधर जो है ना, पहली बात तो मैं करूँगा सहूलत की, जो हुकूमत वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से मैं कहना चाहता हूँ। ख़ास तौर ये मंडी का जो निज़ाम है ना, इधर जानवर के ऊपर है टैक्स जो हम भरते हैं, पीछे 200 रुपये और इधर है 1800 रुपये, 2000 रुपये वो देते हैं। उसके बाद ये जो गाड़ी का और चार्जिंग ले रहे हैं ना 50,000 रुपये, ये सही नहीं है। क्यों? जो वो जो टैक्स हम देते हैं ना वो मंडी का होता है, वो नहीं लेना चाहिए। जो ओवर चार्जिंग है ना 50,000 रुपये ट्रेलर का लेते हैं, नहीं ये ना लेने। और पानी की सहूलत जो है ना, ड्रम देते हैं एक ट्रेलर के साथ 7-8। क्यों? जो जानवर जितने हो तो पानी भी की सहूलत भी उतनी दी जाए ना, जितने ड्रम देते हैं उतनी सहूलत दी जाए, वो नहीं देते। मतलब हमें 400 लीटर मिलता है पानी, 400 में हमारा नहीं गुजारा होता, फिर हमें मोल लेना पड़ता है। हाँ, हमारी गुजारिश ये है जो चार्जिंग ओवर ले रहे हैं ना, ये नहीं होनी चाहिए। और जो सहूलत इन्होंने मतलब पर्ची के ऊपर है वो सहूलत मिलनी चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद कामरान, मैं मुल्तान से आया हूँ सर। कराची में माल ले गए तो यहाँ पे बहुत महंगाई है, बहुत ज़्यादा सर, खर्च अखराजात बहुत ज़्यादा है। एक गाड़ी ट्राला हमारा यहाँ पे आया है, तकरीबन 3 दिनों में हमारा 3 लाख रुपये उसके ऊपर खर्चा हो चुका है। डाले के ऊपर हर चीज़ मोल की है, हर चीज़, किसी चीज़ की चार्जेस नहीं है। पानी के हमने 5 ड्रम लिए, 2100 रुपये के उन्होंने 5 ड्रम भर के दिए हैं बगैर चार्जेस के। तो लिहाजा गुजारिश है, मेहरबानी कीजिए हमारे ऊपर। कोई सहूलत नहीं दिया, लाख रुपया लेते हैं भाई। जगह लान दा बहुत है, दलीलत है। पानी का कमी है, पानी देते भी नहीं है, मोल लेते हैं। 450 में ड्रम भर देता है पठान। हमारा 50 जानवर है, 10 ड्रम दिए हैं 25,000 का। अभी देखो है लाइट भी नहीं है, कोई सहूलत नहीं है हमारे से, बहुत तंग किया है इसने। मंडी में सिब्बी बलूचिस्तान से लाए गए देव हैकल बैल हमेशा ही तवज्जो का मरकज बनते हैं। ऊंचा कद, भारी जिस्म और साफ सुथरे दिखाई देने वाले इन बैलों की परवरिश पर यकीनी तौर पर कसीर रकम और वक्त खर्च हुआ होगा और यकीनन उनके गाहक भी मौजूद होंगे जो मुंह मांगे दाम अदा करने की पोजीशन में होंगे। लेकिन शब्बीर का कहना है कि मवेशियों के ताजिरों से भारी टैक्स के बदले में उन्हें वैसी सहूलतें भी फराहम की जाएं। शब्बीर ने अपने तमाम देखने वालों को ईद कुर्बान की मुबारकबाद दी है और मंडी के कर्ता धर्ताओं से कहा है कि पानी और बिजली के सिलसिले में अगर उन्हें इंसानों पर तरस नहीं आता तो ना आए, मगर दूर दराज से लाए गए कुर्बानी के जानवरों पर तो रहम करें।
اور انہیں پینے کا پانی مہیا کریں. دیکھتے رہیے کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا. ناظرین یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوا. اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے اسی وقت صرف ایکسپریس نیوز پر. دیکھنا مت بھولیے گا کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا. اگر آپ اپنے ارد گرد ہونے والے کسی غیر معمولی واقعے سے شبیر کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں تو ایس ایم ایس کریں. SAB لکھ کر سپیس دیں اور اپنا میسج اپنے شہر اور نام کے ساتھ 247 پر بھیج دیں. فیکس کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 021-3580-3820. خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے 5 ایکسپریس وے آف کرنگی روڈ کراچی. ایکسپریس نیوز شبیر تو دیکھے گا.